हेलो वैभव। Hello Vaibhav, am I audible to you? Hello. Hello everyone. This is Shiv Pandya, Operational Excellence Consultant from GK Engineers. I welcome you all on behalf of Team GK Engineers for this exclusive webinar on 5S, a systematic workplace management technique. Before proceeding to our today's webinar topic, I would like to share some important notes for participating in this webinar. The session is of approximately 45 minutes. You can ask any questions related to the topic by using chat box and we will revert to you within small period of time. Also, you can share your queries on email address and mobile number as shown on our screen. You can also watch the presentation recording on our YouTube channel GK Knowledge Platform. So please do subscribe and stay updated with our latest presentation on various topics. So as we all know, our today's webinar topic is 5S, a systematic and scientific approach to enhance people efficiency, safety and workplace management. Now, before moving to the deliverables of today's webinar, let me share some common misconceptions which are associated with the 5S methodology. The first one is it's not about housekeeping. बराबर, सभी लोगों के माइंड में 5S जैसे ही वर्ड आता है एक प्री डिफाइंड एक परसेप्शन बन जाता है कि ये हाउसकीपिंग के बारे में बात कर रहे हैं. बराबर, तो माय फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 5S सिर्फ हाउसकीपिंग एक्टिविटी नहीं है. इट इज मोर देन दिस. बराबर, इसमें हम हाउसकीपिंग को अवॉइड कैसे करें उस पर भी फोकस कर रहे हैं. बराबर, और एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम 5S इंप्लीमेंट करते हैं, बराबर, तो शुरुआत में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे. बराबर, क्योंकि there are so many variables and dependent variables which can be affected by the 5S activities. बराबर, बहुत सारे variables है जो 5S activity affect करती है, तो उसका quantification एक तरह से मुश्किल हो जाता है. बराबर, you will be never done with the 5S, as we all know that this is not a monthly or yearly flavor. It is a continuous improvement procedure. बराबर, ये एक बार हो गया, हमने पांचों स्टेप अचीव कर लिए. बराबर, तो उसमें पांचवा स्टेप जो है वो हमें कहता है हमें सस्टेन करना है. बराबर, अगर 5S सस्टेन नहीं होगा, एक साल हमने बहुत बेहतरीन 5S किया पर हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए, बराबर, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा फेलियर माना जाएगा. बराबर, 5S का पांचवा एस है सस्टेनेबिलिटी. इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. And moving to the next, our deliverables. What are the deliverables of this webinar? Means what are the objectives of carrying out this webinar and what will be the knowledge we are gaining through this webinar. बराबर, हम इस webinar के जरिए क्या क्या अचीव करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे. तो पहला है व्हाट इज 5S. 5S क्या है उसके बारे में जानेंगे. दूसरा है उसके बेनिफिट्स कौन कौन से है, की बेनिफिट्स. बराबर, जो 4-5 मेजर बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद आएगा 5 पिलर्स ऑफ 5S. व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ 5S.
what are the methodologies we will go about, and what are the potential impacts. बराबर, अगर हम वो methodology adopt करेंगे तो उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स हमें कौन से मिलेंगे वो हम पिलर बाय पिलर सीखेंगे. बराबर, कि ये पिलर हमने अचीव कर लिया तो उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे. बराबर, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज 5S. बराबर, पहला है कि 5S क्या है. तो हम सब जानते हैं कि वो एक सिस्टमेटिक वर्कप्लेस मैनेजमेंट टेक्निक है. बराबर, 5S इज अ सिस्टमेटिक वर्कप्लेस मैनेजमेंट टेक्निक. It is originally developed by Hiroyuki Hirano for manufacturing companies in Japan. And a very good example of 5S is Toyota Production System. We can observe this 5S methodology in Toyota Production System. Almost any work environment, whether it is a service sector or it is a manufacturing sector, all sector can be benefited by the efficiency provided by this model. बराबर, 5S is sometimes called the 5 pillars. बराबर, ये एक 5 पिलर के समान है. हमारा घर भी पिलर के ऊपर खड़ा रहता है. तो ये अगर 5 पिलर अगर सही तरह से हमने इंप्लीमेंट कर दिए तो हमारी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट है उसके की बेनिफिट्स. मैंने यहाँ पे की बेनिफिट्स लिखा है, मतलब जो मेजर बेनिफिट्स हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं वो हम की बेनिफिट्स लेंगे. बराबर, तो पहला है टीम वर्क इंप्रूवमेंट थ्रू एवरीवन्स पार्टिसिपेशन. बराबर, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन के कारण हमारे अंदर टीम वर्क की भावना जागेगी. इजी आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में there are 8 kinds of waste we are facing. Barabar, if you want you can comment in chat box that we can also conduct one separate session on 8 wastes of organizations. Okay, then है improved productivity. बराबर, हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा. देन है इंप्रूव सेफ्टी. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी भी इंप्रूव होगा. देन है हाइटेंड एम्प्लॉय मोरल. एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव होगा. आगे है 5 पिलर्स ऑफ 5S. बराबर, 5 पिलर्स कौन कौन से है. तो जापानीज लैंग्वेज में हमें पता है कि पहला पिलर है सीरी, दूसरा है सिटोन, उसके बाद है सिसो, फिर है सिकेत्सु और पांचवा है सित्सुके. बराबर, पहला पिलर जो है वो है सॉर्ट आउट का. उसमें क्या है, एलिमिनेट व्हाट इज नॉट नीडेड. जो जरूरी नहीं है उसको हमें एलिमिनेट करना है. दूसरा है सेट इन ऑर्डर. बराबर, दूसरा जो सेट इन ऑर्डर है वो कहता है कि अरेंज आइटम सो दैट दे कैन बी लोकेटेड क्विकली. देन साइन पिलर. बराबर, सीसो, कीप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रेडी टू यूज. मतलब जो भी हमें क्लीनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह का जरूरत है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए. फिर है स्टैंडर्डाइजेशन. जो भी हम 3 एक्टिविटीज कर रहे हैं, सॉर्ट आउट की, सेट इन ऑर्डर की और साइन की, वो सब हमें एक स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग उसे बनाना पड़ेगा. देन है सस्टेनेंस. बराबर, तो ये सब जो चीजें हम कर रहे हैं, पहले 4S, उसको सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है. बराबर, कीप टू द रूल्स एंड कंटिन्यू टू इंप्रूव एवरी डे. अभी हम पहले S की तरफ जा रहे हैं, वो है सॉर्ट आउट की एक्टिविटी. तो मैं आप सबको एक ब्रीफली बताऊंगा कि सॉर्ट आउट में हम क्या कर सकते हैं. बराबर, तो कैसे हमें सॉर्ट आउट पिलर को इंप्लीमेंट करना है. तो पहला जो सॉर्ट आउट पिलर को इंप्लीमेंटेशन करने का पॉइंट है वो है हमें आइडेंटिफाई करना है अपने वर्कप्लेस में कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं है. बराबर, तो हम इस आइटम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है कि यस इसकी हमें जरूरत है, यस इट इज नेसेसरी. देन सेकंड वन इज नेसेसरी बट नॉट नाउ और नॉट दिस प्लेस. बराबर, हमें उस चीज की जरूरत है पर अभी जरूरत नहीं है, या फिर इस जगह पर जरूरत नहीं है, कोई दूसरी जगह पर जरूरी है. और तीसरा है नो नॉट नेसेसरी. लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स, अगर जो आइटम है वो तीसरी कैटेगरी में फॉल करती है तो यू हैव राइट्स टू डिस्कार्ड ऑल अननेसेसरी आइटम्स
इमीडिएटली यू कैन स्क्रैप इट और सेल इट, बराबर। अभी जो आइटम्स हमारे एरिया में जरूरी नहीं है या हमें पता नहीं है, उसका डिसीजन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए रेट टैगिंग की एक्टिविटी है, बराबर। रेट टैगिंग की एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम्स हमारे फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं है या फिर जिसका डिसीजन पेंडिंग है, उसको हम रेड टैग लगा के उसको मूव कर देते हैं रेड टैग एरिया में, बराबर। तो वो एक रेड टैगिंग की एक्टिविटी है, वो हमारे एरिया से इनिशियली जो क्लटर है उसको हटाने में मदद करता है, बराबर। तो कीप द वर्किंग फ्लोर क्लियर ऑफ मटेरियल्स एक्सेप्ट फॉर दोज दैट आर इन यूजफुल फॉर प्रोडक्शन। ओनली जो भी यूजफुल है वही हम अपने वर्क एरिया में रखेंगे। वो पर्पस है हमारे पहले एस का, सॉर्ट आउट का। नाउ उसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स क्या क्या होंगे, बराबर। मतलब हम जो सॉर्ट आउट एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। तो पहला बेनिफिट हमारा है रिड्यूस टाइम लॉस इन सर्च ऑफ एन आइटम बाय हैविंग ओनली रिक्वायर्ड आइटम्स, बराबर। तो ये एस हमें कहता है कि ओनली जो रिक्वायर्ड आइटम्स है वो हमारे पास होगी तो उसको ढूंढने में हमें आसानी रहेगी। रिड्यूस कॉस्ट बाय अवॉइडिंग स्टॉक पाइलिंग ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंसिव इन्वेंटरीज, बराबर। जो जरूरी नहीं है वैसी अननेसेसरी इन्वेंटरी को हम स्टॉक पाइलिंग करेंगे तो हमारा जो डेड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा, बराबर। तो वो इनडायरेक्टली हमारे कॉस्ट को इफेक्ट करेगा। फिर है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल यूजफुल स्पेस। अगर अननेसेसरी चीजें ही वर्क प्लेस पे पड़ी रहेगी तो वो हमारे जो यूजफुल जो चीजें हैं उसके स्पेस को यूटिलाइज कर लेगी, बराबर। और देन इंक्रीज द सेफ्टी बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्टेकल्स, बराबर। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स हो गए, अननेसेसरी आइटम्स हो गए, वो हमारे वर्क फ्लोर पे से हट जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे वर्किंग एरिया में सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी, बराबर। उसके बाद है वर्किंग एनवायरनमेंट इज इंप्रूव्ड, बराबर। जो भी अननेसेसरी चीजें हमारे वर्क एरिया से एलिमिनेट हो गई है तो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो ये एक पिक्चर है हमने दिखाया हुआ एक हमारे क्लाइंट के वहां का, उसमें बिफोर आफ्टर दिया हुआ है, बिफोर 1S and after 1S. My friends, I will tell you that it is for only 1S activity, बराबर। तो पहले में जो हम देख रहे हैं वो अननेसेसरी बॉक्सेस एंड वायर्स जो है वो रूम में पड़े हुए हैं, बराबर। तो 1S एक्टिविटी में हमने आइडेंटिफाई किया कि जो क्या नेसेसरी है क्या अननेसेसरी है, बराबर। तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया और वर्क प्लेस एरिया को क्लीन कर दिया, बराबर। तो 1S एक्टिविटी यहाँ पे हमारी खत्म हुई। अभी अगली एक्टिविटी है सेट इन ऑर्डर, सिट ऑन फेज, बराबर। तो मैं पहले आपको बताऊंगा ब्रीफ में कि कैसे हम सेट इन ऑर्डर एक्टिविटी को इंप्लीमेंट करेंगे हमारे वर्क प्लेस पे, बराबर। तो पहला है फंक्शनल स्टोरेज। प्लेस कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस विद द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट बीइंग नियरेस्ट टू द वर्क प्लेस, बराबर। जो भी चीजें हमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमारे इजी रीच में होनी चाहिए, बराबर। उसके लिए कई सारे थंब रूल भी है कि हमें डेली यूज में जरूरी है तो वो विद इन द वर्क एरिया होना चाहिए, बराबर। उसके बाद अगर वो कोई मंथली या ईयरली में जरूरत पड़ती है उसकी तो उसके लिए हमें सेपरेट वर्क प्लेस अलोकेट करना चाहिए। दूसरा है मेक इट इजी टू फाइंड एंड पिक अप नेसेसरी आइटम्स, बराबर। जो भी हमें नेसेसरी आइटम्स चाहिए वो इजीली हमारे पास अवेलेबल हो जाए, इस तरह से हमें उसको प्लेस करना है। और सभी चीजों के लिए हमें एक लोकेशन फिक्स करनी है बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, बराबर। क्या क्या हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज है उसके हिसाब से हम सेट इन ऑर्डर में अपने वहां पर पड़े हुए जिग्स, टूल्स, मटेरियल्स, पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को हम अरेंज करेंगे, बराबर। उसके बाद है यूज क्लियर लेबल्स, मार्क्स और हिंट्स, बराबर। ये हमारा फेज जो है क्लियर लेबल्स, मार्क्स और हिंट्स का, बराबर, वो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन का एक फेज है, बराबर। जो भी हमने इक्विपमेंट और वो सब हमने एक प्रॉपर लोकेशन पे अरेंज कर दिया है उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा कि ये प्लेस जो है वो डेडिकेटेड फॉर दिस इक्विपमेंट ओनली है, बराबर।
इसीलिए हम कहते हैं कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, बराबर। अभी सेट इन ऑर्डर के पोटेंशियल इंपैक्ट्स क्या क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे सेट इन ऑर्डर फेज हमें इंप्लीमेंट करना है, बराबर। तो आप सबको एक छोटा सा आइडिया आ गया होगा कि कैसे कैसे पोटेंशियल इंपैक्ट्स और पॉजिटिव बेनिफिट्स हमको इसके थ्रू मिल सकते हैं, बराबर। तो पहला है मेक द वर्क फ्लो स्मूथ एंड इजी, बराबर। तो वर्क फ्लो हमारा एक तरह से स्मूथ एंड इजी हो जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी जो क्लटर होगा वो हमारे वर्क एरिया से दूर हो चुका है, और जो भी चीजें हमें जल्दी चाहिए वो हमारे एकदम नजदीक में मिल रही है, और जो चीजें हमें मंथली या ईयरली बेस पे चाहिए, जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज लो है, उसने हमें मूव कर दिया है अलग लोकेशन पे, बराबर। डेडिकेटेड लोकेशन दे दिया है, पर वर्क प्लेस से हमने थोड़ा उसको दूर रखा है, ताकि हमारी डेली एक्टिविटी में वो कुछ रुकावट पैदा ना करे। उसके बाद है रिक्वायर्ड आइटम्स इजीली लोकेटेड एंड स्टोर्ड, बराबर। हमने बोला कि एवरीथिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, बराबर। अगर सभी जगह का प्लेस डिफाइन होगा और सभी चीजें उसी प्लेस पे रखी होगी, तो हमें उसको लोकेट करने में और स्टोर करने में इजी होगा। स्टोर करने में इजी होगा मतलब क्या, कि मैंने ये आइटम यूज कर ली है, उसके बाद वापस मुझे कहाँ रखना है वो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद है रिट्राइवल टाइम इज रिड्यूस, जैसे मैंने बताया कि वापस उस चीज को उस जगह पे पहुंचाना है, तो मैं इजीली पता कर सकता हूं कि मुझे यही चीज यहां पर रखनी है, तो उसकी वजह से मेरा टाइम रिड्यूस होगा, बराबर। तो मेन बेनिफिट जो है इसका पोटेंशियल इंपैक्ट सेट इन ऑर्डर का, वो है राइट आइटम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी एंड राइट मेथड, बराबर। जो 4R जो है वो उसके प्लेस पे हो गए, मतलब हर एक चीज की जगह फिक्स होगी, कितनी क्वांटिटी में वो चीज चाहिए मुझे वो भी फिक्स होगा, किस मेथड से उसकी मूवमेंट होगी वो भी फिक्स होगा, बराबर। तो सब चीजें अगर सेट इन ऑर्डर होगी तो हमारा वर्क फ्लो जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है 2S का बिफोर आफ्टर, बराबर। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे बिफोर जो है उसमें टूल बॉक्स के अंदर सभी टूल्स पड़े हुए हैं और कोई अरेंजमेंट नहीं है। अभी कोई आदमी बाहर से आएगा या न्यू कमर होगा, कंपनी में न्यू ज्वाइनी होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होगा, अगर उसको टूल वगैरह फाइंड करना है, बराबर, तो वो कैसे फाइंड करेगा? तो उसका जो सर्चिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं एक टूल बॉक्स खोलूं, उसके अंदर सर्च करूं कि मुझे ये नंबर का स्पानर है वो मुझे चाहिए, कहाँ मिलेगा, बराबर। तो उसकी जगह हमने एक टूल बोर्ड रखा है, वो राइट साइड पर आप आफ्टर में देख सकते हो, उसमें हमने हर एक टूल के लिए जगह फिक्स कर दी है, बराबर। उसको हम बोलते हैं टूल शैडो बोर्ड, बराबर। उसका जो टूल रखा हुआ है उसके पीछे एक शैडो रहता है, बराबर। जो शैडो है उसके हिसाब से ही हम वो टूल वहां पे रखेंगे, बराबर। ये एक तरह का पोकायोके सिस्टम हम कह सकते हैं। पोकायोके का मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये फुल प्रूफिंग का सिस्टम है। अगर किसी वर्कर को पता नहीं है कि ये चीज कहाँ पे रखनी है, तो वो उसका शैडो देख के समझ सकता है कि नहीं भाई ये चीज की साइज इतनी है, ये यही जगह पर जाएगी, बराबर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है पोकायोके का। फिर नेक्स्ट एक इमेज है बिफोर आफ्टर की, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसमें जो भी जो टूल्स वगैरह है, जो पैकेजिंग मटेरियल है, स्मॉल क्वांटिटी में जो भी है वो सब नीचे पड़ा हुआ है और रैक में भी ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ है, बराबर। तो उसमें एक मेन दिक्कत तो ये आती है कि हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत ये आती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये सब जो मटेरियल हमारे पास पड़ा है, बराबर, उसको हमें क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो ओपन एरिया में पड़ा हुआ है, बराबर। तो उसके लिए हमने एक ड्रोवर जैसा मैकेनिज्म बनाया है, बराबर। एक सेल डिफाइन कर दिया है हर एक चीज के लिए, और अंदर भी सेट इन ऑर्डर करके हर एक इक्विपमेंट को और हर एक मटेरियल को आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। उसके बाद है साइन फेज, बराबर। थर्ड फेज है हमारा साइन फेज। तो कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे? तो पहला है क्लीन द प्लेस ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट ऑन अ डे टू डे बेसिस और एट अदर सुटेबल क्लीनिंग इंटरवल, बराबर। जो हमारा क्लीनिंग का जो शेड्यूल है
बराबर, वो हम डिफाइन करेंगे और इसके हिसाब से हम इंटरवल सेट करेंगे कि कौन से इंटरवल पर कौन सा वर्क एरिया और कौन सा इक्विपमेंट क्लीन होना चाहिए। बराबर, उसके बाद जो लिखा हुआ है 4 पॉइंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है डिफाइन राइट क्लीनिंग टूल। बराबर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये प्रॉब्लम कॉमन रहता है। बराबर, सब कहते हैं कि ये एरिया क्लीन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। बराबर, फ्लोर क्लीनिंग में अगर जो आपके पास जो हैवी ड्यूटी वाला केमिकल रहता है, अगर ऑयल्स रहता है, बराबर, तो उसको क्लीन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर केमिकल्स और प्रॉपर हैंड ब्रश वगैरह होना चाहिए। बराबर, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे वर्क एरिया और इक्विपमेंट को क्लीन करने के लिए हमें कौन सा टूल चाहिए। बराबर, उसकी मेथोडोलॉजी कौन सी होगी, कौन सा क्लीनिंग मटेरियल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बराबर, और वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो वर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी डिफाइन करना पड़ेगा। बराबर, तो ये बात हो गई कि हमें क्लीनिंग कैसे करना है। बराबर, दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि क्लीनिंग करना तो है, पर वो जो डर्ट, डस्ट, केमिकल लीकेज, स्पिलेज वगैरह जनरेट जो हुआ है, उसका हमें रूट कोज भी फाइंड आउट करना है कि ये हम डे टू डे बेसिस पर क्लीनिंग तो कर रहे हैं। बराबर, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिलेज, लीकेज हो रहा है। बराबर, तो वो लीकेज, स्पिलेज को हम क्लीन कर रहे हैं डे टू डे बेसिस, हमने फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ा दी है, डेली बेसिस पे करना है, पर वो स्पिलेज, लीकेज क्यों हो रहा है उस पे भी हमें ध्यान देना है। बराबर, क्योंकि जब तक हम उसके रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे, उसके सोर्स को, उसके जनरेटिंग सोर्स को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, हमारा जो साइनिंग का पिलर जो है वो उसको हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। बराबर, तो ये साइन पिलर को हमें मजबूत करने के लिए क्लीनिंग के साथ साथ जो भी जनरेटिंग सोर्सेस है, बराबर, जो भी हमारे जनरेटिंग सोर्सेस है उस पर भी हमें डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। बराबर, उसके लिए हमें डेली इंस्पेक्शन वगैरह करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन के लिए चेकलिस्ट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो हमारा फोकस सिर्फ क्लीनिंग पे नहीं, पर उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर भी होना चाहिए। बराबर, फिर है डेली फॉलो अप क्लीनिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेंटेन अ क्लटर फ्री वर्क प्लेस। बराबर, अगर ऊपर से किसी का प्रेशर वगैरह नहीं होगा, मतलब के कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी नहीं होगी, बराबर, कि ये एरिया को क्लीन करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही नहीं है, हमने बोल दिया कि ये एरिया को क्लीन करना है, पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका फॉलो अप कौन लेगा। बराबर, तो वो अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो ये हमारा पिलर मजबूत नहीं हो पाएगा। फिर है इसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स। बराबर, कौन कौन से पोटेंशियल इंपैक्ट्स है जो हमारे साइन पिलर को दर्शाते हैं। तो पहला है हायर क्वालिटी वर्क एंड प्रोडक्ट्स। बराबर, दूसरा है मोर कंफर्टेबल एंड सेफर वर्क एनवायरनमेंट, ग्रेटर विजिबिलिटी एंड रिड्यूस्ड रिट्राइवल टाइम। बराबर, ये ग्रेटर विजिबिलिटी का मतलब क्या है, चलो ग्रेटर विजिबिलिटी जो हमने बात की कि जनरेटिंग सोर्सेस पर हम अटैक करेंगे, क्लीन करेंगे। बराबर, मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी एक जगह पर कहीं पे पंप चल रहा है, बराबर, केमिकल का या ऑयल का पंप है, मान लो किसी ऑयल का, तो वो ऑयल का पंप है, उसके आसपास सब जगह पे ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल के पंप के ऊपर भी सब ऑयल स्प्लैश हुआ हुआ है। बराबर, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो ऑयल लीकेज कहां से हो रहा है, जब तक हम उस एरिया को क्लीन नहीं करेंगे वी कैन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कोज, मतलब वो कहां से लीकेज हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ग्रेटर विजिबिलिटी के लिए हमें साइन की जरूरत है। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। बराबर, कई सारी मशीनें ऐसी होती है कि जो डस्ट और डर्ट की वजह से उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, जो भी रोटेटिंग और मूविंग पार्ट्स है, बराबर, उसके अंदर डे टू डे अगर डस्टिंग वगैरह बढ़ना शुरू हो गया, डस्ट के पार्टिकल्स आना शुरू हो गए, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसकी लाइफ डिटोरिएट होती जाएगी। बराबर, उसके बाद है क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन विजिटर्स एंड ड्यूरिंग कस्टमर इंस्पेक्शंस। बराबर, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, बराबर, तो वो पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे,
आपके घर को देखेंगे, बराबर। घर में क्या चीजें हैं वो बाद में देखेंगे, पहले आपको घर का देखेंगे कि घर आपका कितना साफ सुथरा है, बराबर। हमने जो है एक हमारे जो कस्टमर है उससे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके जो कस्टमर है, हमारे क्लाइंट के कस्टमर, बराबर, वो विजिट पर आए थे। हमने 5S इम्प्लीमेंट करने के बाद काफी 6-7 महीना जैसा हो गया था, बराबर। तो उसके बाद जो कस्टमर्स विजिट हुई क्लाइंट के वहां पे, बराबर, तो उन्होंने बोला कि यू आर हैविंग एन एक्सीलेंट फैसिलिटी, बराबर। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि मोर नंबर ऑफ कस्टमर्स, बराबर, उन्होंने बुलाए कंपनी में कि आप हमारी कंपनी में आके विजिट करो, बराबर। तो ये जो 5S है वो हमारे लिए एक मार्केटिंग टूल भी है, बराबर। मान लो कि अगर आपको कोई क्वांटिटेटिव बेनिफिट नहीं मिल रहा है, टेंजिबल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर आप इसको एक मार्केटिंग टूल की तरह भी यूज कर सकते हो, बराबर। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन विजिटर्स, बराबर। जो भी विजिटर्स है उसके ऊपर वो पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो साइनिंग फेज जो है वो इंडस्ट्री एज वेल एज हमारे घर दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बराबर। ये हमने सम एग्जांपल्स लिए हैं साइन के, बराबर। इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग इक्विपमेंट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज कर रहे हैं, बराबर, वो लोग अलग अलग एरिया में। और एक चीज आप देख सकते हो कि ये सब वर्कर लेवल के आदमी नहीं है, बराबर। जो 5S एक्टिविटी है वो सबको करनी है, बराबर। ये कोई बॉटम लेवल का अप्रोच नहीं है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो बोलेगा बॉटम लेवल को कि आप 5S करो, बराबर, ये एरिया क्लीन करो, ये एरिया क्लीन करो, बराबर। इसमें सबका साथ चाहिए। फिर है हमारा चौथा स्टैंडर्डाइजेशन, सिकेत्सु, बराबर। हमने जो पहले 3 फेज देखे, पहला था हमारा सॉर्ट आउट, दूसरा था सेट इन ऑर्डर और तीसरा था साइन, बराबर। अभी ये तीनों एक्टिविटी जो है, बराबर, उसको हमको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ही जरूरी है, बराबर। अगर ये हम स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, बराबर, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन हो गए, जो करंट एम्प्लॉयज है वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, बराबर, तो क्या होगा, जो एक्टिविटी है वो माउथ टू माउथ कम्युनिकेट करने में क्या होगा, जो भी है वो थोड़े थोड़े दिनों में डिटोरिएट होता जाएगा। तो हमें सबके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसा सेट इन ऑर्डर, सॉर्ट आउट और साइन, तीनों एक्टिविटी के लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है डेवलप अ वर्क सिस्टम दैट कैन अपकीप द न्यू प्रैक्टिसेस एंड मेक इट पार्ट ऑफ द डेली रूटीन, बराबर। जो हमारी जो करंट जो हम फॉलो कर रहे हैं सिस्टम, सॉर्ट आउट की, सेट इन ऑर्डर की और साइन की, बराबर, उसके लिए हमें एक वर्क सिस्टम बनानी पड़ेगी। और डेली इसी तरह की काइजन एक्टिविटीज जो है, बराबर, जो हम चेंज फॉर बेटरमेंट बोलते हैं, वो सबको हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। दूसरा है मेक श्योर एवरीवन नोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग द सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग, बराबर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब जानते हैं कि अगर कंपनी में आपको जॉब मिल रही है, बराबर, तो आप पहले ही इंटरव्यू में आप सामने से पूछोगे कि व्हाट विल बी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्लियर नहीं होगी तो आप इफेक्टिवली कोई भी काम कर नहीं सकते हैं, बराबर। अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है कि मुझे सॉर्ट आउट करना है, सेट इन ऑर्डर करना है, क्लीनिंग करना है और इस वे में, इस फ्रीक्वेंसी में करना है, बराबर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होना बहुत जरूरी है, बराबर। तो उसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा कि सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी पड़ेगी। फिर है यूज पिक्चर्स एंड विजुअल कंट्रोल्स टू हेल्प कीप एवरीथिंग एज इट शुड बी, एनहांस विजुअल मैनेजमेंट एट बेस्ट पॉसिबल लेवल्स, बराबर। कई लोगों को पता होगा कि 5S एक बहुत ही बढ़िया विजुअल मैनेजमेंट की सिस्टम भी है, बराबर। तो जो भी हम विजुअल मैनेजमेंट करते हैं, विजुअल कंट्रोल्स हम जो भी अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं, बराबर, उसके 2 मैं आपको प्राइमरी बेनिफिट्स बता देता हूं, बराबर। तो उससे क्या होगा, वो पहला बेनिफिट है एफिशिएंसी, बराबर, वर्क की एफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। दूसरा बेनिफिट है सेफ्टी हमारी इंप्रूव होगी,
बराबर। तो विजुअल मैनेजमेंट के दो प्राइमरी आउटकम्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी एंड वर्क सेफ्टी will be improved due to the visual controls, बराबर। फिर उसके बाद है रिव्यू द स्टेटस ऑफ 5S इंप्लीमेंटेशन रेगुलरली यूजिंग द ऑडिट चेकलिस्ट, बराबर। हमें स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद एक स्टैंडर्ड ऑडिट चेकलिस्ट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी ताकि हम एश्योर कर सके कि कितने परसेंटेज हमारा काम आगे बढ़ रहा है, बराबर। मतलब सेट इन ऑर्डर, सॉर्ट आउट और जो क्लीनिंग का जो हमारा फेज है, बराबर, उसका असेसमेंट कर रहे हैं हम थ्रू ऑडिट चेकलिस्ट, बराबर। तो वो भी कस्टमाइज ऑडिट चेकलिस्ट हमारी खुद की इंडस्ट्री के लिए हम बनाएंगे, बराबर। और वो हमारी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होगा, बराबर। मतलब हम बोल रहे हैं कि ये कस्टमाइज ऑडिट चेकलिस्ट होगी पर वो हमारा इंडस्ट्री वाइड स्टैंडर्ड है, बराबर। कि ये हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स जो है सॉर्ट आउट की, सेट इन ऑर्डर की और क्लीनिंग की, उसके लिए स्टैंडर्ड है, बराबर। फिर उसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स क्या क्या होंगे, मतलब जो हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो पहला है बेटर वर्कप्लेस स्टैंडर्ड्स, बराबर। हमारे वर्कप्लेस का स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव होगा। फिर जो है विजुअल कंट्रोल सिस्टम हमारा इंप्रूव होगा। फिर रूल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे। हमारे एरिया में जो भी वर्किंग प्रोसीजर्स है वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होंगे। फिर है इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, बराबर। इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन भी मेजर रोल है। विजुअल कम्युनिकेशन का भी, जो भी हम स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, बराबर, उसमें विजुअल एसओपीस भी इनकॉर्पोरेट से क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद है इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशन एंड वर्क फ्लो। जो भी हमारा ऑपरेशन है और जो भी वर्क फ्लो है, बराबर, वो हमारा इंप्रूव हो जाएगा ड्यू टू दिस स्टैंडर्डाइजेशन, बराबर। क्योंकि सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, किस तरह से काम करना है, कौन सी मेथड से काम करना है, इट इज क्लियर टू ऑल, बराबर। अगर ये सब कुछ क्लियर होगा तो हमारा ऑपरेशन एंड वर्क फ्लो जो है उसका इंप्रूव होगा, बराबर। फिर हमारा जो आखिरी जो पांचवा जो पिलर है, बराबर, ये सभी चारों पिलर से सबसे मजबूत पिलर मान सकते हैं हम इसको, कि ये जो है वो सस्टेनेंस का है। मजबूत पिलर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आगे की चार एक्टिविटी आप कर भी लो, बराबर, पर अगर आप सस्टेन नहीं कर पाए तो जो भी हमने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी हमने मेहनत की है, जो 1S 2S और 3S एक्टिविटी करने में, इन तीनों एक्टिविटी को 4th S के द्वारा स्टैंडर्डाइज करने में जो भी हमने मेहनत की है वो सब स्पॉइल हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस वी विल सस्टेन, बराबर। तो अगर हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी एफर्ट्स है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो सस्टेनेंस कैसे करना है उसके मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स दे देता हूं कि सस्टेनेंस कैसे करना है। तो पहला है ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस, बराबर। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते रहना है ताकि सभी वर्कर्स में अवेयरनेस हो। उसके बाद है कैरी आउट रेगुलर ऑडिट्स टू मेक श्योर दैट ऑल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड फॉलोड, बराबर। जो भी हमारे स्टैंडर्डाइजेशन में ऑडिट की जो चेकलिस्ट थी, बराबर, उसको हमने जो स्टैंडर्डाइज किया है, बराबर, उसको हमें मेक श्योर करना है कि वो डिफाइंड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद है इम्प्रूव वेयर एवर पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? इम्प्रूव वेयर एवर पॉसिबल का मतलब है हमें कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करना रहना पड़ेगा, बराबर। सस्टेन जो है, बराबर, हमें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या हमें खुद को मार्केट में सस्टेन करना है, बराबर, तो भी हमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होता रहना पड़ेगा, बराबर। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मारुति का, बराबर। मारुति ने पहली कार बनाई थी मारुति सुजुकी 800, बराबर। हम सबको पता है कि मारुति सुजुकी 800 जो है वो मारुति की पहली कार थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो पैरेलली अलग अलग मॉडल की कार बनाती है, बराबर।
तो अभी मारुति को मार्केट में सस्टेन रहना है, बराबर, अगर उसको सस्टेन रहना है मार्केट में तो वो सिर्फ मारुति 800 बेच के सस्टेन नहीं रह सकते हैं, बराबर। तो उसके लिए उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, उसके बाद उसका नाम था जेन, बराबर, मारुति जेन, बराबर। जेन जो है वो जापानीज वर्ड है, जो काइजन जो है वो भी जापानीज वर्ड है। काइजन मीन्स चेंज फॉर बेटरमेंट, बराबर। वैसे ही मारुति 800 के बाद जेन कार आई, तो जेन है वो मारुति जो कंपनी है मारुति सुजुकी, वो लोग ऐसा दर्शाना चाहते थे कि ये जो मॉडल है वो हमारा बेटर वर्जन है, बराबर। हम हमारी सिस्टम में हमारे मार्केट में सस्टेन रहने के लिए हमने ये हमारा बेटर वर्जन जो है वो बनाया है, बराबर। फिर है वर्कर इनपुट्स कैन बी वेरी वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफाइंग इंप्रूवमेंट्स, बराबर। जो शॉप फ्लोर पे जो वर्कर्स है, बराबर, उसका उसका वैल्यूएबल फीडबैक लेना बहुत ही जरूरी है, बराबर। जो मैनेजर्स ऑफिस में बैठे हैं या मंथली या डेली या वीकली शॉप फ्लोर की विजिट करते हैं, उनको इतना प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा या फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता होगा जितना एक वर्कर लेवल पे पता होता है, बराबर। वर्कर जो है वो हमेशा गैम्बा पे रहता है, बराबर। जो आप गैम्बा विजिट करते हो, हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट है गैम्बा वॉक, बराबर। गैम्बा वॉक में कहते हैं कि आप शॉप फ्लोर पे जाओ और सभी चीजों को, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, बराबर। तो शॉप फ्लोर पे जाने के बाद हम गैम्बा वॉक करके सब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बराबर। तो ऐसे ही जो वर्कर है वो 24/7 365 डेज डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स जो है वो हमेशा गैम्बा पे ही रहते हैं, तो उनके दिमाग में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स के आइडिया हो गए, बराबर। तो उनके वैल्यूएबल फीडबैक लेने की हमें बहुत ही जरूरत है टू सस्टेन इन द 5 years एक्टिविटी। उसके बाद है व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज आइडेंटिफाई देयर कोज एंड इम्प्लीमेंट द चेंजेस नेसेसरी टू अवॉइड रिपीटेशन, बराबर। कोई भी प्रॉब्लम आता है, बराबर, तो उसका रूट कोज आइडेंटिफाई करने का हमें कोशिश करना चाहिए टू सस्टेन, बराबर। फिर उसके बाद है पोटेंशियल इम्पैक्ट्स, बराबर। अगर हम सस्टेन कर गए हमारे 5S सिस्टम को, अगर हम सस्टेन कर गए तो उससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या हो गए, what will be the potential impacts that we are going to get through this sustained phase, बराबर। फर्स्ट वन इज कंप्लायंस टू वर्कप्लेस रूल्स, बराबर। जो भी हमारे वर्कप्लेस के रूल्स है उसके साथ कंप्लायंस होगा थ्रू वर्क इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एवरी इंडिविजुअल्स, बराबर। उसके बाद है टीम स्पिरिट एंड डिसिप्लिन आर डेवलप्ड, बराबर। सभी लोग एक टीम बन के, बराबर। हमारी 5 years की एक्टिविटी में एक मेजर एक्टिविटी जो है स्टार्टिंग के प्लानिंग फेज में, बराबर, हम प्लान डू चेक एक्ट की बात करें तो प्लानिंग फेज में जो मेजर एक्टिविटी है वो टीम फॉर्मेशन है, बराबर। टीम फॉर्मेशन में सभी लोग अपने अपने एरिया में 5S और उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, बराबर, तो उसकी वजह से टीम स्पिरिट जो है वो बढ़ेगी, बराबर। उसके बाद काइजन की मेंटालिटी जो है वो डेवलप होगी सब में, बराबर। तो काइजन मेंटालिटी जो है वो डेवलप होगी ड्यू टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थिंकिंग एट ऑल लेवल्स, बराबर। फिर है अडॉप्शन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बराबर। उसके द्वारा हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। फिर है एनहांस ऑपरेशन इफेक्टिवनेस इन अ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, बराबर। ऑपरेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती है। एक ये नेक्स्ट स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की है सस्टेन की, बराबर। जो सस्टेन की एक्टिविटी है उसको आप गौर से देखिए, बराबर। पहला फेज है उसमें इंप्रूवमेंट हम कर रहे हैं, बराबर। जो जो हमारी जो वो बॉल दिख रही है एक आपको, वो हम एक स्लोप के ऊपर चढ़ा रहे हैं, बराबर। जो हम है एक स्टेप अप कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद है प्रिवेंट फॉल बैक, बराबर। जो भी हम सिस्टम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, बराबर, हम एक लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं और उस लेवल को हम मेंटेन कर रहे हैं, बराबर। तो सिर्फ सस्टेनेंस से भी काम नहीं चलेगा, आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मारुति 800 थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था,
वो बहुत बढ़िया चल रही थी, बराबर, एवरेज भी जो भी चाहिए था वो सब दे रही थी, बराबर। पर मार्केट में अगर आपको सस्टेन करना है तो आपकी जो प्रैक्टिसेस है उसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे ले जाना है। आपको एक पता होगा कि सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, बराबर, तो वो ऐसे ही हम सिक्स सिग्मा अचीव नहीं कर देते। कोई भी कंपनी अगर करंटली टू सिग्मा या थ्री सिग्मा पे है, वो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके अगर फोर सिग्मा पे पहुंचते हैं, बराबर, उसके बाद वो फोर सिग्मा पे रुक नहीं जाते हैं। वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने के लिए डिफेक्ट्स पे काम करते रहते हैं, डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए काम करते रहते हैं। और जो स्टेप हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं उससे एक और स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो एक फोटो है उसके द्वारा मैं आपको एक शॉर्ट में ब्रीफ दे देता हूं कि जो भी हमने 5 S देखे, बराबर, वो क्या कहना चाहते हैं। पहला जो S है वो है अनावश्यक वस्तुएं हटाए और ज्यादा जगह पाए, बराबर, जो भी अननेसेसरी क्लटर है उसको दूर कर दे और अपने वर्क एरिया को फ्री रखे, जो भी नेसेसरी वस्तुएं है उसको रखने के लिए। फिर दूसरा है सेट इन ऑर्डर, बराबर। जो सेट इन ऑर्डर है उसमें क्या है कि हर चीज के लिए हमने जगह निश्चित की है और हर चीज निश्चित जगह पर है, बराबर। फिर है साइन, उसमें क्या लिखा है, सफाई ऐसी मंदिर जैसी, बराबर। फिर चौथा है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, जो भी हम 1, 2 और 3 कर रहे हैं, सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर और साइन, उसको हमें डॉक्यूमेंटेड करना है ताकि वो स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट फॉलो होता रहे। क्योंकि क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है, सिस्टम, वो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में वही की वही रहेगी, जो भी जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो चेंज होते रहेंगे, बराबर। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मेन एम क्या है कि हमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें पीपल ओरिएंटेड नहीं सिस्टम ओरिएंटेड बनाना है, बराबर। टू मेक अवर organization system oriented, we must have to standardize all the 3 S's, बराबर। उसके बाद है पांचवा S जो है वो हमारा है सस्टेनेंस का। उसमें हिंदी में क्या लिखा है, जब हो 5S हमेशा का साथ, स्वच्छता, गुणवत्ता, उत्पादकता, सुरक्षा हो अपने हाथ, बराबर। उसमें फोकस कीजिए हमेशा का साथ, बराबर। मतलब आप एक साल में 5S करके छूट जाओगे ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात चल रही है। तो यहाँ पे हमें सस्टेनेंस करना बहुत ही जरूरी है। एक जो है थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स है 1 to 5S के लिए, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला जो है सॉर्ट आउट, बराबर, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट है कि व्हेन इन डाउट मूव इट आउट, बराबर। आपको डाउट है कि इसकी जरूरत है या नहीं है, बराबर, तो उसको आप अपनी वर्क प्लेस एरिया से हटा दो। दूसरा है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, बराबर। हर एक चीज की जगह फिक्स होनी चाहिए और वो चीज उसी की जगह पर होनी चाहिए। वो हमारा था फेज सेट इन ऑर्डर। उसके बाद है मेक इट क्लीन एंड कीप इट क्लीन। एक बार हमने क्लीन कर दिया उसके बाद हमें हमेशा उसको क्लीन रखना है। दिस इज अवर थर्ड स्टेप ऑफ साइन। देन इफ यू कांट सी यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो यू कांट कंट्रोल, बराबर। ये हमारी बात हुई विजुअल स्टैंडर्डाइजेशन की, बराबर। अगर आप कुछ चीज को देख नहीं सकते, बराबर, तो आप उसको जान भी नहीं सकते। अगर आप उसको जान नहीं सकते तो आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बराबर। सिक्स सिग्मा में हम कहते हैं कि इफ यू कांट मेजर यू कांट कंट्रोल, बराबर। अगर आप किसी चीज को मेजर ही नहीं कर पाते हो, बराबर, तो आप उसको कंट्रोल नहीं। उसके बाद है मेंटेन द गेन एंड फॉरगॉट द ब्लेम, बराबर। दूसरों पे ब्लेम लगाना छोड़ के हमें सस्टेन रहना है 5S में, बराबर। इसके साथ मैं आपको थोड़े बहुत पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूं जो हमने इंप्लीमेंट किए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, बराबर। बिफोर 5S जो है उसमें हम देख सकते हैं कि जो भी ड्रोवर्स है उस पर कुछ लेबलिंग वगैरह नहीं था, बराबर। उसके अंदर सब टूल्स वगैरह पड़ा हुआ था, तो उसमें जो सर्चिंग टाइम है वो हमारा बढ़ जाता है, बराबर। तो 5S के बाद क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज्ड और लेबल्ड ड्रोवर हमारा बन गया। उससे क्या होगा कि हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, बराबर। ऐसे 5S के रिलेटेड काफी सारे एग्जांपल्स है, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं आपको।
ये जो है हमारे एडमिन और एचआर डिपार्टमेंट या फिर हमारा कोई भी डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रहता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बराबर, डेटा डेटा जो हमारा है, जो आईएसओ की फाइल्स है या मेंटेनेंस रिलेटेड फाइल्स है या एचआर के रिकॉर्ड्स है, बराबर, तो बहुत सारी फाइल्स हमारे पास होती है। तो उसको हमें लेबल्ड करके वेल ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमारा सर्चिंग टाइम उसमें भी रिड्यूस होगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि इसमें सॉर्ट आउट और सेट इन ऑर्डर फेज इंप्लीमेंट किया है। उसमें पहले जो इमेज आपको दिख रही है वो बिफोर की है। उसमें क्या है, जो टूल्स वगैरह जो नहीं जरूरी था, बराबर, जो पार्ट्स थे वो भी जरूरी नहीं था, वो सब भी हमारे वर्क एरिया में पड़ा हुआ था, बराबर, तो वो हमने रिमूव कर दिया। और उसके बाद सभी चीज के लिए वो आप राइट कॉर्नर में एक व्हाइट ड्रॉवर और ब्लैक ड्रॉवर देख सकते हो, उसको कलर कोडिफिकेशन करके हमने सभी चीजों के लिए एक एरिया डिफाइन कर दिया ताकि हमारा सर्चिंग टाइम कम हो और जो वहां पे जो काम कर रहा है पर्सन, बराबर, उसका भी मोरल हाई रहे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डाइस है, बराबर, जो फोर्जिंग इंडस्ट्रीज की डाइस है वो वैसे ही पड़ी हुई है और एक आदमी भी उस पर बैठा हुआ है, बराबर। तो वो जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पेस हमारी यूटिलाइज कर रहा है और कौन सी डाई है, कौन से नंबर की है, क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, बराबर। तो वो एरिया से हमने क्या किया कि अनवांटेड जो आइटम्स थी उसको रिमूव कर दिया और डाइस के लिए प्रॉपर लोकेशन डिफाइन कर दी विथ लेबल्ड आइडेंटिफिकेशन, बराबर। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट मूव करता रहता हूं, बराबर, आप देखते रहिए कि इसमें जो है वो अनवांटेड जो चीजें हैं वो फ्लोर एरिया पे पड़ी हुई है, उसके लिए हमने एक रैक जैसा डिफाइन कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वायर्स वगैरह थे, बराबर, तो उसको हमने प्रॉपरली सॉर्टिंग किया और उसके बाद लेबल करके सेट इन ऑर्डर किया है। फिर ये हम देख सकते हैं कि एक मशीन है, उसमें बहुत ही हाईली रोटेटिंग पार्ट्स और मूविंग पार्ट्स थे, बराबर। तो उसमें सेफ्टी इश्यू था क्योंकि वहां पे कुछ भी सेफ्टी गार्ड जैसा लगा नहीं था, बराबर। तो उसके लिए हमने सेफ्टी गार्ड वहां पे लगाया है, बराबर। तो एक बार मैं फिर से प्रीवियस में करता हूं। अभी कोई मुझे पूछेगा कि ये सेफ्टी गार्ड लगाया है, बराबर, तो वो कौन से एस में फॉल करता है, बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि 5S जो है वो इटसेल्फ एक सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, बराबर। जो उसमें हमारा पहला जो एस है सॉर्ट आउट का, बराबर, तो सॉर्ट आउट में हम सिर्फ कहते हैं कि अनवांटेड जो भी है, अनवांटेड एंड अननेसेसरी हमें रिमूव करना है, बराबर। तो अनवांटेड जो है, बराबर, तो यहाँ पे जो सेफ्टी नेट नहीं है, बराबर, वो हमारे लिए एक अनवांटेड चीज ही है, बराबर। तो सॉर्ट आउट फेज में हम जब भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो सेफ्टी रिलेटेड चीजें भी हम देखेंगे, बराबर। फिर वो डाइस वाला एग्जांपल है एक और, बराबर। ये आप एक वर्क एरिया देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं, क्लटर पड़ा हुआ है। वहां पे अंदर से कोई हमें चीज चाहिए तो वो हम ले भी नहीं सकते, बराबर। तो उसमें हमारा जो वर्क एरिया है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। तो अननेसेसरी चीजें हमने हटा दी है। फिर उस जो एरिया है जो हॉरिजॉन्टली ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी जगह हमने वर्टिकल रैक लगा के जो वॉल्यूमेट्रिक एरिया जो है वो हमने यूटिलाइज किया है। फिर इसके बाद जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स है, बराबर, हमने तीसरे फेज में डिफाइन कर लिया कि हमें ये चीज को क्लीनिंग करना है एंड दीज आर द टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव क्लीनिंग, बराबर। तो वो सब टूल्स हमने जो आइडेंटिफाई कर लिए, बराबर, जो नहीं थे वो हमने प्रोक्योर कर लिए है। तो देयर शुड बी वन सेपरेट प्लेस डिफाइंड फॉर क्लीनिंग टूल्स एज वेल, बराबर। जो भी क्लीनिंग टूल्स है उसके लिए भी एक सेपरेट जो स्पेस है वो डिफाइन करनी बहुत ही जरूरी है, बराबर। वो हमारा क्लीनिंग का टाइम भी सेव करता है। ये फिर इंक्स वगैरह रखा हुआ है, बराबर। उसमें क्या था कि जो भी इंक थी, बराबर, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज के हिसाब से वहां पे नहीं रखा हुआ था। जो आप लेफ्ट साइड पे फोटो देख रहे हो वहां पे जो बड़े बड़े इंक के जो बैरल्स है, बराबर, तो वो जो है वो ईयरली या 6 मंथली यूज वाले थे।
और जो डेली यूज वाले थे वो वहां पे पीछे छुप गए थे। तो जब भी कोई चीज हमें चाहिए थी तो वहां से हमें निकालना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि जो भी डेली यूज वाले या फ्रिक्वेंटली यूज वाले इंक्स थे, बराबर, उसको हमने एरिया डिफाइन करके वहीं पे वर्क एरिया में हमने सेट किया। और जो भी 6 मंथली या ईयरली फ्रीक्वेंसी यूज वाले थे उसके लिए हमने अलग से एरिया डिफाइन करके उसको वर्क प्लेस से थोड़ा दूर रख दिया है, बराबर। अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S, बराबर। ये मैंने बहुत ही ब्रीफ स्टेप्स लिए हुए हैं, बराबर। उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, पर इतना ज्यादा आइडिया नहीं आएगा। पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहला है परफॉर्म 5S ट्रेनिंग विथ एक्सपर्ट टू एजुकेट एवरीवन, बराबर। सबको ट्रेनिंग देनी है 5S के बारे में, क्योंकि सबको पहले क्या है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हम कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे सभी वर्कर से लेके टॉप मैनेजमेंट तक सबको उस चीज का अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है। फिर दूसरा है कवर 100% एरिया, बराबर। हम फोकस स्टार्ट कर सकते हैं किसी एक चीज से, कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं या शॉप फ्लोर से या स्टोर से स्टार्ट करते हैं। पर 5S जो एक्टिविटी है वो हमारे 100% एरिया को कवर करनी चाहिए, बराबर। मतलब स्टोर से, ऑफिस से, शॉप फ्लोर से, गार्डन से, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद है प्रिपेयर प्लांट लेआउट, बराबर। हमको प्लांट लेआउट बनाना पड़ेगा। और जो जो भी हम उसके बाद टीम का फॉर्मुलेशन करेंगे वो टीम को हम जोन्स में डिवाइड कर देंगे, बराबर। फिर उसके बाद है डिसाइड द जोन्स विद जोन कोड एंड कलर कोड, बराबर। वो जोन का जो भी जोन लीडर होगा वो उस जोन के 5S की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा, बराबर। फिर है क्लिक द फोटोग्राफ्स ऑल ऑफ ऑल द एरिया जोन वाइज, बराबर। हमें सभी जोन के फोटोग्राफ्स बिफोर के लेने हैं, बराबर, क्योंकि हमने कहा कि क्वांटिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ 5S, बराबर। हमें 5S के केस में क्वांटिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, बराबर। तो जो भी हम विजुअल, जो बिफोर के फोटोग्राफ्स लेंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे आफ्टर के साथ, बराबर, वो इटसेल्फ एक टेंजिबल रिजल्ट बन जाएगा हमारे लिए, बराबर। तो कोई भी 5S की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू कैप्चर ऑल द फोटोग्राफ्स ऑफ बिफोर 5S एक्टिविटीज, देन परफॉर्म 5S इन सिस्टमेटिक मैनर, बराबर। जो भी हमने 5 स्टेप बताए हैं ब्रीफ में, बराबर, वो आपको करना है। उसके बाद है क्लिक फोटोग्राफ्स अगेन। मैंने जैसे बताया कि आफ्टर फोटोग्राफ्स आप जैसे भी लोगे, बराबर, तो वो आपको रिजल्ट जनरेट करेगा, वो आपका टेंजिबल आउटकम होगा, बराबर, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर है विजुअलाइज द रिजल्ट एज ऑडिट स्कोर एंड बिफोर आफ्टर फोटोज, कीप मोटिवेटिंग द टीम एंड गेट हायर एंड हायर स्कोर। Hope all of you have enjoyed our session, and I am sure that my colleague has sorted out all of your queries. And if you do have queries regarding this session as well as this topic, you can mail us and contact us on given details. So dear friends, if you are satisfied from training and feel that this training has enhanced your knowledge, so provide your appropriate feedback, बराबर। आपको एक फीडबैक का फॉर्म मिलेगा, वो आप लिंक पे क्लिक करके आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। फिर हमने जैसे कहा कि ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट थी, पर मैं आपको बता दूं कि उसका चार्जेस क्या है, बराबर। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग है कि काइंडली फीड एनीवन नीडी पर्सनल इन योर सराउंडिंग्स एज पर योर विश, बराबर। जो भी अभी कोरोना की वजह से जो भी लोग अभी मुश्किल में हो गए हैं, बराबर, उसको आप फीड करोगे तो वही हमारे लिए हमारी ट्रेनिंग का चार्जेस होगा, बराबर। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू एट नेक्स्ट ट्रेनिंग। You can mail us and call us on given contact numbers. Thank you very much, all of you.